morning, friends. Today I'm going to discuss about the circulatory system, and in this circulatory system I'm going to discuss about the various parts related to the circulation. So circulatory system, this is the system which mainly involved in the transport of the various substances, right? In the transport of various substances, and these substances can be useful as well as waste substances. In useful substances, like digested food in the form of glucose. Then another useful substance is like oxygen and hormones, then enzymes. These all are the useful substances for our body. While in the waste included the carbon dioxide and the urea. These are the waste substances. So our circulatory system involved in transport of these kind of the substances. Now our circulatory system, the main component is the blood, and this blood, it is composed of two main parts. One is the plasma and another is the cells suspended in the plasma, right? So the blood, approximately 55% part, this yellow color part, right? This is the plasma, and 55% of the blood is consist of the plasma. Then the remaining part, it is red blood cells, white blood cells and platelets, right? So there are three different type of these cells in the blood. Red blood cells, RBC means red blood cells, WBC white blood cells, and the platelets. These three kind of cells, they all are present in the plasma. Clear? So this plasma, firstly we will discuss about the plasma. This plasma, it mainly consists of 90% of the water, right? 90% in the plasma is the water, and the remaining is suspended particle, like I discussed in the earlier slide, like digested particles, oxygen, urea, and such kind of the things, they are present in the plasma. Clear? This plasma is responsible for the transportation, movement of particles from one place to another place. Okay, this plasma bring all the useful substances from one part of the body to the another part, and remove waste product like carbon dioxide and the urea from these cells to the outside of the body. Okay, now come to the cells. So in the cell, first is the red blood cell. So these red blood cell, these are maximum in number. They are present in maximum in number as compared to other cells, WBCs and the platelets, higher number. Red color is due to the presence of pigment hemoglobin. This red color is because of the pigment hemoglobin. Mainly this heme part, that is responsible for the red color, and this globin is the protein part, and it is circular in shape. Its life cycle is about 120 days. Very short lifespan. जो रेड ब्लड सेल्स होती हैं उसका जो लाइफ स्पैन होता है वो बहुत कम होता है. क्यों कम होता है? क्योंकि इसमें न्यूक्लियस एब्सेंट होता है. अब किसी भी सेल को सर्वाइव करने के लिए न्यूक्लियस चाहिए होता है, लेकिन इसमें न्यूक्लियस नहीं होता, इसलिए सिर्फ ये 120 डेज तक रहेगी और उसके बाद में इसकी
डेथ हो जाती है सेल की, फिर नई सेल बनती है। और ये सेल बनती कहाँ है? बोन मैरो के अंदर। बोन मैरो प्रेजेंट होता है, ये बोन मैरो जो है हमारा डिफरेंट टाइप की ब्लड सेल्स बनाता है, तो बोन मैरो ही हमारी रेड ब्लड सेल बनाएगा, राइट। देन अगर हम ब्लड डोनेट करते हैं, नॉर्मली क्या होता है कि लोगों के अंदर एक मिथ होता है कि अगर हम ब्लड डोनेट करेंगे तो हमारे अंदर ब्लड की कमी हो जाएगी, वीकनेस आ जाएगी। लेकिन विद इन 1 डे आपकी बॉडी में जितना भी आपने ब्लड डोनेट किया है उससे 3 टाइम्स ब्लड आपका बन जाता है, सिंथेसाइज हो जाता है, राइट। तो दिस इज अबाउट द रेड ब्लड सेल। नाउ द नेक्स्ट थिंग इज next thing is the white blood cell. So these white blood cells are called the soldiers of the body. अब soldiers का काम क्या होता है कि प्रोटेक्शन करना, तो इनको हम soldiers of the body क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये हमें इन्फेक्शन से प्रोटेक्ट करती हैं। अब इन्फेक्शन से कैसे प्रोटेक्ट करेंगी? कुछ सेल्स होती हैं वो क्या करती हैं, जो हार्मफुल बैक्टीरिया होती हैं उनको किल कर देता है, और कुछ जो सेल्स होती हैं वो बनाती हैं एंटीबॉडीज़। अब ये जो एंटीबॉडीज़ बनती हैं ये प्रोटीन मॉलिक्यूल्स होते हैं। जो भी फॉरेन पार्टिकल, चाहे कोई डस्ट पार्टिकल है, कोई इन्फेक्टिव पार्टिकल है, कोई बैक्टीरिया है, कुछ भी आपकी बॉडी में बाहर से एंटर करता है, इवन अगर हम कोई ऑर्गन ट्रांसप्लांट करते हैं, दैट इज़ ऑल्सो एज अ फॉरेन सब्सटेंस। तो ये सब हमारी बॉडी के लिए काम करते हैं एज अ एंटीजन, फॉरनर की तरह काम करते हैं, जिन्हें बोलते हैं एंटीजन। उनके अगेंस्ट में हमारी बॉडी क्या करती है, एक पर्टिकुलर काइंड के प्रोटीन बनाती है जिसे बोलते हैं एंटीबॉडी, राइट। और ये एंटीबॉडी बनाने का काम करता है WBC सेल्स। WBC की फर्दर डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स हैं, हम नेक्स्ट किसी लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे। अभी इस लेक्चर में हम बेसिक डिस्कस कर रहे हैं कि क्या ब्लड होता है एंड क्या हमारा सर्कुलेशन होता है, राइट। तो ये एंटीबॉडी आपकी सिंथेसाइज होती हैं और ये क्या करेंगी, एंटीजन को किल करती हैं, उसको रोकती हैं, उसको ब्लॉक कर देती हैं, क्लियर। और ये एंटीबॉडी की वजह से ही हमें पता चलता है कि किसी की इम्यूनिटी कितनी है। जिसके अंदर जितनी ज़्यादा ये होगी उतनी ज़्यादा उसकी स्ट्रॉन्ग इम्यूनिटी होती है, उतना ज़्यादा हम बोलते हैं कि उसके अंदर डिजीज़ फाइटिंग कैपेसिटी है, राइट। अब जो WBC है वो कैसी शेप का होता है, वो हमारा सर्कुलर शेप का था, ये हमारा स्फेरिकल शेप का है, और इसके अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं। इसका नंबर बहुत कम है एज़ कम्पेयर टू RBCs, एंड इसके अंदर न्यूक्लियस ये डिफरेंट शेप्स के हैं, लाइक ये हमारी क्या है, एरिथ्रोसाइट सेल्स हैं, ठीक है, सर्कुलर हैं, विदाउट न्यूक्लियस होती हैं। ये हमारी क्या है, ये बेसोफिल, लिम्फोसाइट, मोनोसाइट, इओसिनोफिल, न्यूट्रोफिल, डेंड्रिट्रोक, ये सब की सब क्या है, हमारी WBC हैं। WBC 2 तरह की होती हैं, एक होती हैं ग्रैन्युलर, एक होती हैं हमारी ग्रैन्युलर जिसमें ग्रैन्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, एक होती हैं इग्रैन्युलर जिसमें ग्रैन्यूल्स प्रेजेंट नहीं होते हैं, ठीक है। अब वो फर्दर फिर डिवाइड करती हैं, जिसमें से बेसोफिल, इओसिनोफिल, न्यूट्रोफिल, ये 3 जो हैं ये हमारी एक कैटेगरी में आती हैं। अब इसमें आप देखिए कि इसमें न्यूक्लियस आपका बाइलॉब्ड है, इसमें इसकी शेप डिफरेंट है, इसमें ट्रिपल लॉब्ड न्यूक्लियस प्रेजेंट है, शेप सबकी डिफरेंट है, इरेगुलर भी है एंड आपकी स्फेरिकल भी है। देन ये मोनोसाइट है, मोनोसाइट फिर फर्दर 2 टाइप का होता है, मैक्रोफाज जब मैच्योर हो जाता है, ये डेंड्रिटिक सेल्स होती हैं, ऐसे प्रेजेंट है, लिम्फोसाइट होती हैं, ठीक है। तो ये सारी तुम्हारी WBC सेल्स हैं। देन थर्ड हमारी आती है प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स को हम क्या बोलते हैं, ब्लड क्लॉटिंग सेल्स। अब इसमें भी आपका न्यूक्लियस एब्सेंट होता है, और ये क्या करती हैं, कहीं पे भी हमें कट लगता है तो आपने देखा होगा थोड़ी देर बाद हमारा जो ब्लड है वो क्लॉट कर जाता है, जम जाता है, तो वो जो जम जाता है, क्लॉट बन जाता है, वो इन प्लेटलेट्स की वजह से बनता है। अगर क्लॉट नहीं बनेगा तो हमारा ब्लड कॉन्टीन्यूसली फ्लो करता रहेगा, ब्लड की कमी हो जाएगी और हमारी डेथ तक हो सकती है, राइट। तो प्लेटलेट क्या करते हैं, क्लॉट फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं। तो ये बेसिक था हमारा कि क्या ब्लड की कॉम्पोजिशन है, राइट।
नेक्स्ट हमारा आता है ब्लड हार्ट के बारे में, जो मेन हमारा ब्लड कैसे बन रहा है, कहाँ से फ्लो कर रहा है, बनता है, ठीक है, फिर वो कैसे फ्लो करता है, कैसे सर्कुलेट करेगा, वो सारे का सारा हमारा ये मेन ऑर्गन है। मेन ऑर्गन है ये हमारे सर्कुलेटरी सिस्टम का। इसे हम पंपिंग ऑर्गन भी बोलते हैं क्योंकि कॉन्टीन्यूसली ब्लड को पंप करता रहता है, ठीक है। ये हमारा हार्ट है एंड ये रफली ट्रायंगुलर शेप का होता है, ठीक है। इसमें क्या है, हमारे 4 चैम्बर्स हैं, 2 चैम्बर ये हैं और 2 चैम्बर ये हैं। तो ये जो ऊपर वाले 2 चैम्बर्स होते हैं इन्हें हम बोलते हैं एट्रियम। सिंगुलर के लिए एट्रियम वर्ड है एंड प्लूरल के लिए एट्रिया है, राइट। तो ये राइट है एंड ये लेफ्ट है, ओके। हमारे से अपोजिट है, लाइक ये मेरा राइट हैंड है, तो अगर हम पेपर पे ड्रॉ करते हैं तो हार्ट का वो लेफ्ट साइड होगा, और ये मेरा लेफ्ट है तो हार्ट का जब हम ड्रॉ करेंगे तो वो राइट होगा। तो ये क्लियर रखना है, अपोजिट होगा, ठीक है। जो लोअर पार्ट होता है, लोअर पार्ट को हम बोलते हैं वेंट्रिकल्स, ठीक है। ये वेंट्रिकल्स हैं, 2 एट्रियम होते हैं, 2 वेंट्रिकल है इन केस ऑफ मैमल्स, ह्यूमन बींग्स में, और जो बर्ड्स हैं उनके केस में आपका 4 चैम्बर्ड हार्ट है, 2 एट्रिया एंड 2 वेंट्रिकल हैं। अब राइट एंड लेफ्ट साइड को सेपरेट करने के लिए बीच में ये एक सेप्टा प्रेजेंट होता है, पार्टीशन प्रेजेंट होता है, इसे बोलते हैं सेप्टम। ये क्यों प्रेजेंट होता है ये भी आपको क्लियर हो जाएगा कि जो राइट साइड है इसके अंदर हमारा इम्प्योर ब्लड प्रेजेंट है, इम्प्योर ब्लड, और यू कैन से डीऑक्सीजनेटेड, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, इम्प्योर ब्लड बोलते हैं, डीऑक्सीजनेटेड को ब्लू कलर का है। और ये जो राइट साइड, सॉरी लेफ्ट साइड में है, ये आपका ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, क्लियर, प्योर ब्लड जिसको बोलते हैं। अब ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड से क्या मतलब है, इम्प्योर एंड प्योर से? ऑक्सीजनेटेड ब्लड का मतलब है कि ये वो ब्लड है जो कि ऑक्सीजन प्रेजेंट है इस ब्लड के अंदर, और ऑक्सीजन प्रेजेंट की वजह से इसका कलर होता है रेड कलर का, ठीक है। ये रेड कलर नज़र आ रहा है। ये वाली जो साइड है इसमें हमारा ऑक्सीजन एब्सेंट होती है, और ऑक्सीजन की जगह क्या प्रेजेंट होता है, कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट होती है, उसकी वजह से इसका कलर ब्लू है। इसे हम इम्प्योर ब्लड बोलते हैं, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड बोलते हैं, क्लियर। अब होता क्या है कि यहाँ पे ये जो हमारा एट्रियम है, ठीक है, ये जो हमारा एट्रियम वाली साइड है, इसमें क्या होगा कि ये हमारी बॉडी है, बॉडी की अपर साइड, और ये बॉडी की लोअर साइड। बॉडी की अपर एंड लोअर साइड से जो भी इम्प्योर ब्लड है वो यहाँ पे हमारे राइट एट्रियम में आता है, ठीक है। यहाँ पे ये वॉल्व प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। वॉल्व एक तरह का लॉक कह सकते हो आप, कि इसमें एक वॉल्व प्रेजेंट है, गेट प्रेजेंट है, ट्राइकस्पिड वॉल्व प्रेजेंट होता है यहाँ पे। ये वॉल्व क्या करता है, एट्रियम एंड वेंट्रिकल के बीच के अंदर एक ब्लॉक की तरह काम करता है। तो जब राइट एट्रियम के अंदर ब्लड आता है, इम्प्योर ब्लड आएगा, अपर बॉडी से आएगा, लोअर बॉडी से आएगा, इस राइट एट्रियम में आएगा, तो ये जो ट्राइकस्पिड वॉल्व है उस टाइम क्लोज होता है। फिर क्या करता है, राइट एट्रियम आपका कॉन्ट्रैक्ट करेगा, क्योंकि इसमें मसल्स प्रेजेंट होती हैं, हार्ट के अंदर मसल्स प्रेजेंट है, तो कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन होंगी इसमें। एट्रियम आपका कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो वो क्या करेगा, ब्लड को आगे ऐसे पुश करेगा, तो ये जो ट्राइकस्पिड वॉल्व है ये ओपन हो जाएगा, और वो इम्प्योर ब्लड तुम्हारा यहाँ पे राइट वेंट्रिकल में आ जाएगा। जैसे ही ब्लड इसमें आएगा ये वॉल्व तुम्हारा क्लोज हो जाएगा, ठीक है। अब राइट वेंट्रिकल, जैसे ही राइट एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट होता है, ब्लड वॉल्व खुलेगा, राइट